Good evening, sir. Yes, good evening, sir. Evening, sir. Sir, your mic is muted. Okay, so starting the class now. I will request all of you that in which copy book you are writing all the notes. On the first page of that or the last page, whatever is free, write an index. Index means number one, chapter's name, and on which page that chapter is there. Means whenever you want to do a revision, you know that at which page of my notebook or copybook, which chapter or which day is there. Right? So you got it. You all know how to make index. Index is going to help you in your revision also, and index is also going to help you in knowing which all chapters we have finished till now. Clear? Yes, sir. Okay. Second, one important thing which I want to discuss with you is whenever we speak, there are three parts, important parts of speech. That is number one, which is the most important, is called body language. Means when I'm talking, how I am moving my hands, my facial expression, right? How are my shoulders? So the complete body, how it is moving, how it is supporting my speech, that is called body language. Number two is voice. How is my voice? Loud, not very loud, not slow, the exact one, clear, audible, with pause, with proper intonation, ups and downs. My voice is there. And the last one is content. What I am speaking. Is it of any importance to the audience? So always remember BVC. Whenever I'm speaking, I have to take care of three things. One is my body language, second is my voice, and third is my content. What am I speaking? Fine. Yes, sir. 5 golden Yes, rules. sir. I'm sure that you must be following it. And self-motivation mantra means every day I'm going to motivate myself that what all things I'm going to do today and how they are important. Why I have to focus on those things without any distraction. Okay. Now, in the last class, we discussed modals and imperative mood. I'm sure that you must have uh, gone through it and you must have done some studies on modals and imperative mood. I will do, just today I will discuss something more about modals. So verbs are of two types, ordinary and auxiliary. So auxiliary means what? Helping verbs. Is, am, are, do, does, has, have, did, will, shall. We call them in auxiliary verb, helping verb है ये. And all the other verbs, like we discussed yesterday, modals. Modals are also helping verbs, but they are a bit different, right? So auxiliary means helping verb. They are just helping for a sentence formation. That's it.
कोई उनका उसके अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ सेंटेंस को बनाने में वी यूज देम। बट जिनके कारण सेंटेंस का मूड, सेंटेंस का भाव बदल जाता है, दोज verbs are one minute. Okay. I was explaining something else. So verbs are of two types, ordinary and auxiliary. Ordinary verbs में आ गया आपका सारा ये run, sleep, talk, dance, sing, okay. And जो उनको help करता है sentence formation में is, am, are, has, have, do, does, वो हो गया auxiliary. Auxiliary is having two parts, primary and modal. अगर वो सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करता है तो प्राइमरी, बट अगर वो सेंटेंस के भाव को बदलता है देन दे आर कॉल्ड मॉडल्स। सॉरी, मैं थोड़ा सा दोनों में कंफ्यूज कर गया। अब आपको समझ में आया? फिर से एक बार एक्सप्लेन करो। वर्ब दो तरह का हो गया, बहुत जगह ऑर्डिनरी को बोलते हैं मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी बोल देते हैं उसको। जितना भी आपका एक्शन है, सिट, स्टैंड, रन, वॉक, स्लीप, ईट, ये सब हो गया ऑर्डिनरी वर्ब या बहुत बार बोलते हैं मेन वर्ब, ओके। एंड जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वी कॉल देम ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये तो क्लियर है। अब ऑक्सिलरी का दो पार्ट है, वन इज प्राइमरी एंड सेकंड इज मॉडल। अगर वो सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज होता है, लाइक इज, एम, आर, ही इज गोइंग, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, इज, एम, आर, तो ये प्राइमरी है। और अगर वो सेंटेंस का भाव, उसके मूड को, उसके यू कैन से उसके अर्थ को चेंज कर सकता है, देन हम उसको बोलते हैं मॉडल। जैसे कि आई कैन, आई मस्ट, आई ऑट टू, आई माइट, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। लेकिन जहां मैंने यूज किया आई कैन, इसका भाव चेंज हो गया। अच्छा, ये अपने एबिलिटी को बतला रहा है। आई मस्ट यानी बता रहा है कि मुझे ये काम करना ही करना है। आई ऑट टू मतलब ये काम लीगली उसके लिए करना जरूरी है, राइट। आई शुड मतलब ये एक सजेशन है कि मुझे ये काम करना चाहिए। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो सेंटेंस के भाव को चेंज करते हैं एंड दे आर कॉल्ड मॉडल्स। पहला जो डिवीजन था दैट इज फॉर वर्ब्स के लिए, और सेकंड जो डिवीजन आपको दिख रहा है वो हेल्पिंग वर्ब्स के लिए है। नाउ ऑर्डिनरी या जो मेन वर्ब जिसको हम बोलते हैं वो दो तरह का है, रेगुलर एंड इररेगुलर। रेगुलर मतलब उसमें ईडी लगेगा, प्ले, प्लेड, प्लेड, डांस, डांस, डांस्ड, प्लो, प्लोड, प्लोड, मैरी, मैरिड, मैरिड, ईडी लग रहता है उसमें। और अगर उसका फॉर्म पूरा चेंज हो जाता है, ईट, एट, ईटन, देन वी कॉल देम इररेगुलर। इन आवर क्लास वी आर लर्निंग एवरी डे इररेगुलर वर्ब्स बिकॉज उनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। शेक, शूक, शेकन, अदरवाइज अगर आपने शेक 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 कर दिया तो गलत हो जाएगा। शेक, शूक, शेकन, तो इररेगुलर वर्ब्स का मतलब उसका फॉर्म बिल्कुल अलग रहेगा। सो वी हैव टू रिमेंबर देम। और बाकी जितने भी रेगुलर हैं उसमें ईडी ईडी लगा करके V2 एंड V3 हम बनाते हैं। सर, हाँ बताइए। सर ऑर्डिनरी वर्ब के वक्त मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया, ऑर्डिनरी वर्ब बता दीजिए। फिर से बोलिए। ऑर्डिनरी वर्ब के वक्त मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया, सिर्फ अच्छा, ऑर्डिनरी अच्छा, वर्ब अच्छा। बता दीजिए। तो वर्ब्स जो हमारे हैं वो दो तरह के हैं। ऑक्सिलरी मतलब हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और जो बहुत जगह हम बोलते हैं उनको हम मेन वर्ब भी बोलते हैं, जैसे कि रन, स्लीप, वॉक, ईट। यस सर। इसको हम ऑर्डिनरी वर्ब भी कहीं कहीं बोला जाता है, कहीं कहीं इसको मेन वर्ब भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे बताना है कि मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, इसमें जो ईट है वो ऑर्डिनरी वर्ब है या मेन वर्ब है, और जो एम है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ऑक्सिलरी में सर, दो, हाँ बोलिए। ऑर्डिनरी को ही लेक्साइल वर्ब बोलते हैं। कौन सा वर्ब? लेक्साइल वर्ब, ये कौन सा वर्ब है? लेक्साइल वर्ब, स्पेलिंग बताइए। LEXIL। LEXIL, लेक्सिल, लेक्साइल। हाँ ये तो मैंने आज तक हाँ, ये वर्ड सुना नहीं है। नाइस सर, आज ओके तक सर, ये कोई word बात नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, आपने कहाँ से ठग लाया ये लेक्साइल? रुक जाइए, देख लेते हैं ना, फटाक से देख लेते हैं। पता नहीं, आई एम नॉट गेटिंग ऑन गूगल ऑल्सो, आप प्लीज एक बार चेक कीजिएगा। ओके,
सो ये आपका हो गया वो। और ऑक्सिलरी का दो पार्ट हो गया, प्राइमरी एंड मॉडल। एक हो गया इज, एम, आर, हैज, हैव, जिसका सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सेंटेंस के ओवरऑल भाव को, मूड को, टोन को चेंज नहीं करते हैं। बट जो मॉडल है वो चेंज करता है, कैन, कुड, शुड, राइट। और ऑर्डिनरी का दो पार्ट हो गया, रेगुलर, इरेगुलर। अगर ईडी के साथ बनता है V2 V3 तो रेगुलर हो गया, अगर पूरा का पूरा फॉर्म चेंज होता है तो इरेगुलर हो गया। नाउ 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, ये थोड़ा सा यूनिक चीज है जो कि शायद ग्रामर के बुक्स में नहीं मिलता है, कि ये जितने भी वर्ब्स हैं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब आप देखिए नीचे में अभी आ रहा है एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। ये आपके हो गए प्राइमरी, जो हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल होते हैं। ये कितने हैं, काउंट कीजिए कितने हैं। 12। ठीक से काउंट कीजिए, 3, 5, 7, 9, 11 है। और उसके नीचे जो मॉडल है वो कितना है, काउंट कीजिए। 13. So there are 13 modals and 11 primary auxiliary verb. 13 plus 11 कितना हो जाएगा, 13 plus 11 24. So ये 24 friends of not क्यों बोलते हैं, बिकॉज जब भी ये सेंटेंस में आएंगे एंड मुझे उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो नॉट हमेशा इनके साथ ही लगेगा। सेंटेंस में अगर ये हैं और मुझे उस सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल करना है तो नॉट इनके साथ ही जुड़ेगा। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं आई मे गो देयर, अब मुझे सेंटेंस में नॉट जोड़ना है तो नॉट कहां लगेगा, आई मे नॉट लगेगा। आई कुड नॉट, आई माइट नॉट, आई हैड नॉट, आई वर, यू वर नॉट, आई वॉज नॉट। तो जब इनके साथ ही नॉट लगता है, इसीलिए इनको बोलने के लिए बोलते हैं 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। 11 plus 13 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, इनके साथ ही नॉट लगेगा, राइट। इसके अदरवाइज जितने हमारे मेन वर्ब्स हैं, प्ले, सिंग, रन, उनके साथ नॉट नहीं लगता है। उनके साथ में हमको डू, डज, डिड लगाना पड़ता है। आई डू नॉट प्ले, ही डज नॉट सिंग, आई डिड नॉट डू, राइट। तो डू, डज, डिड लगता है जब हमारा ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब हम यूज करते हैं। बट बाकी इन सारे केसेस में कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है, इनके साथ ही नॉट लग जाता है। इनके अलावा और कोई ऐसा वर्ब नहीं है जिसमें डायरेक्टली नॉट लगता हो, नहीं लग सकता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। ओके, दे एक्सप्रेस मूड, मोड ऑफ द वर्ब। ये जो आपके मॉडल्स हैं, मैंने बताया आपको, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि वुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट हमने यूज किया था कि ये पूरे ये वर्ब का मूड चेंज करते हैं, तो सेंटेंस का ही ओवरऑल मूड चेंज हो जाता है। इसीलिए इनका नाम मॉडल्स इनको हम बोलते हैं। हम एक बार वापस इंपरेटिव मूड को चेक कर रहे हैं। जहां भी ऑर्डर, विश, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, अपोलॉजी, राइट, डिक्लेयर, प्रोहिबिशन, वार्निंग, इन्विटेशन, ये सब जहां इस्तेमाल होगा कमांड, तो हम ऐसे उसको हम बोलते हैं इंपरेटिव मूड। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एंड आई होप आप लोगों ने इसको एक बार रिवाइज किया होगा। अगर रिवाइज अभी भी नहीं किया है, प्लीज डू द रिविजन। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस, प्लीज ड्रॉप मी योर क्वेरी। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द एग्जाम, आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल स्कोर ऑफ ऑल ऑफ यू। आज रात तक प्लीज अपना अपना स्कोर मुझे डाल दीजिए कि आउट ऑफ 100 हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट। ठीक है, प्लीज डाल दीजिए। अगर आप जब तक ये डालेंगे नहीं, आई एम नॉट श्योर कि आपने कैसे एग्जाम को किया है, राइट। एंड जहां जहां आपसे गलतियां हुई हैं, प्लीज मेक एन एक्शन प्लान एंड डू द रिविजन प्रोसेस।
ठीक है, हो जाएगा। हर्ष, आपका हो गया टोटली? यस सर। टोटली कैसे हुआ? आपने तो अभी तक अपना वो स्टोरी और स्पोकन इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन था वो आपने चेक भी नहीं कराया अभी तक। सर मैंने आपको सेंड कर दिया था। सेंड कर दिया था, बट आई थिंक आई टोल्ड इन द क्लास कि प्लीज ड्रॉप अ मैसेज, टेक टाइम, टॉक टू मी सो दैट आई कैन चेक एंड आई कैन लेट यू नो कि कहाँ कहाँ आपसे गलतियां हुई हैं। तो अभिनव ने टाइम ले लिया, ही हैज करेक्टेड। मैम ने टाइम ले लिया, शी आल्सो हैज चेक्ड। एक आप ही बचे हुए हैं। Yes, sir. Sir, हाँ बताइए। sir, I have query in correcting answers. Can I call you after class? I didn't class in आफ्टर क्लास यू morning कैन because कॉल, I am in jam. आफ्टर क्लास यू कैन कॉल, ठीक है? ओके। Yes, sir. Okay, sir. Now coming to verb forms, we have discussed fly, flew, flown, give, gave, given, grow, grew, grown, and hide, hid, hidden, and know, knew, known. आज का है lie, ride, rise, see, and shake. Please write V2 and V3 of all these verb forms quickly. V2 and V3. Any word which is new, you don't know the meaning, please ask. Okay, let's check one by one. Lie, lay, lane, that is one. इस lie का मतलब होता है लेट जाना, लेटना. Second is lie, lied, lied. इसका मतलब होता है झूठ बोलना. पहला lie मतलब लेटना. I am going to lie on the bed. I am going to lie on the bed. मैं बेड पे लेटने जा रहा हूं. He lied. उसने झूठ बोला. Ride, rode, ridden. Rise, rose, risen. See, saw, seen. And shake, shook, shaken. All easy, all clear, no doubts. नो सर। Okay. मैं लाई का नहीं जानती थी, दोनों मीनिंग मैं एक ही मीनिंग जानती थी, झूठ Okay, बोलना। okay. बट ये बहुत ही कॉमन है. लाई डाउन, लेट जाओ. यस सर, बट आई न्यू द ले, LAY, ले ओनली। ले का मतलब दूसरा है. यस, ले द टेबल, यानी कि टेबल लगाओ. जब सपोज कोई गेस्ट आ रहा है मेरे घर में और मुझे टेबल पे प्लेट, चम्मच, छुरी, कांटा सब लगाना है, टेबल को रेडी करना है, तो बोलते हैं प्लीज that is- ले द टेबल, एंड टेबल को लगाओ. और दूसरा होता है ले का also new मतलब, for me। हाँ दूसरा होता है ले मतलब अंडा देना. हाँ, that I knew। हाँ, हेंस ले एग्स, मुर्गियां अंडा देती हैं. ले, अंडा देना. LAY, ले means लेटना। I knew LAY, ले means लेटना। LIE, लाई means झूठ बोलना। LIE, लाई मतलब लेटना. LIE, लाई मतलब झूठ बोलना. LA, Now my confusion is my confusion is removed now। okay, now it's removed. Okay, fine. So, okay, done. Now coming to the next one, pronunciation. Okay. Now, Harsh, tell me the first one, how to pronounce. Economics. Okay, next, Abhinav. Economy. Next, Radha ma'am. Right। Okay, next, Harsh. Environment. Next, Abhinav. Finance. Okay, next. garage। अब देखते हैं इसका right. So first one is economics. इक पे जोड़ है पहला, और nomics, economics.
तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो ओ है, ईसी के बाद का जो ओ है उसका कोई इस्तेमाल नहीं है. ईसी इक, NOMICS, नॉमिक्स, इकोनॉमिक्स. आई एम स्टडीइंग इकोनॉमिक्स इन ग्रेजुएशन. बट जब हम यूज करते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, एक ही शब्द का ये दोनों बने हैं, एक ही शब्द से, बट दोनों के प्रोनाउंसिएशन में अंतर है. इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स. जैसे कि इकोनॉमी है, बहुत बार बोलते हैं इकोनॉमिक्स, रॉन्ग है वो. इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी. इकोनॉमी रॉन्ग हो जाएगा. इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स अलग हो गया, इकोनॉमी अलग हो गया. देखिए दोनों के साउंड में अंतर है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. नाउ दिस वन इज एलीट. एलीट, एलीट का मतलब किसको मालूम है? हु विल टेल मी? एलीट नहीं मालूम है. I don't. Yes, I don't know. एलीट का मतलब होता है खास. He belongs to an elite class. elite class बोलते हैं. elite segment, यानी कि आम नहीं, खास. elite. She belongs to an elite family. खास फैमिली, आम से हट करके अच्छी फैमिली. उसको हम हिंदी में बोलते हैं संभ्रांत. अगर आपने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, संभ्रांत परिवार से आते हैं. वो एक संभ्रांत परिवार से आती है. She belongs to an elite family. That is elite. Next one is environment. Environment. Environment लंबा भी है, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा. Environment. Okay. Next one is fiance. Fiance का मतलब होता है, हिंदी बोलते हैं मंगेतर. मंगेतर का इंग्लिश है fiance. And fiance is a French word. Fiance. But English में हमने इसको as it is ले लिया है, fiance. Environment, fiance. Sir, where is O in fiance? क्या क्या कहाँ पर? Where is O in fiance? In Hindi, it's right fiance. Fiance, because it's a French word, so it's fiance. O का इसमें नहीं है, but because of French origin, French का जो sound है अल्फाबेट का, वो थोड़ा सा different है. Because of that, the pronunciation is fiance. लिखने में लगता है कि fiance in English, but it is fiance. So economics, economy, elite, environment, fiance and garage. garage नहीं, garage हम बोलते हैं या garage बोलते हैं हिंदी में. garage, garage. It's Yes. garage, garage. Okay. So we have to practice, we have to share so that we can remember this for a long time. The spoken English video I will send you, nothing to worry. Now coming to use modals and imperative mood. So I want all of you, आज थोड़ा सा अगर हो सकता है कि हमारा क्लास यहाँ पर ही खत्म हो जाए, because now I'm going to ask you, all three of you, one by one, you can choose any one modal, any one, and please explain in the class. So first Abhinav will explain, then Radha ma'am will explain, and then lastly Harsh will explain. Out of 13 models, choose any one, and explain कि भाई उसको कौन सा मॉडल चूज किया है and उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं. And you have to explain in English. Please do not use Hindi. Yes, sir. Okay. First I Start. yes, sir. Ordinary word is No. yes, sir. No. Wait. मैं सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ. I told that there are 13 models. Out of 13, choose any one and explain it. Any one out of 13. Yes, sir. Model shall, should, will, that one. So I told you, na, in the module there are 11 कौन सा था? Primary था, and
13 models था. 13 So out of 13, models. choose any one and explain. Sir, I don't get what are you saying. That's a big problem. That's a big problem. रुक जाओ. Quickly I will take you through the. इसका मतलब कि आपका फोकस कहीं और था. जब मैं बता रहा था, you were not listening properly. See, I told to count. लास्ट का जो 2 लाइन है इस स्क्रीन पे, प्राइमरी एंड मॉडल. How many are there in primary? Abhinav, please count. 11, And how many in model? 13. And I told, out of these 13, explain any one. अब समझ में आया? It's clear? Out of 13 types of model, explain any one. You got Yes, it sir, or not? need. Okay. चलो Yes, sir. बताओ. Please explain. Yes, sir. Sir, we use need when we want something. We ask anyone. We need this. We want this. Yes, sir. Anyone anyone we can want the item that then we say, please, I need the item, please give me. I need that item, please give me. क्या ये सही है? पता नहीं. ये तो complete wrong हो गया. Because you are using need as the main verb. I need this. I am needing this. I do not need this. जो बात मैं कर रहा हूं in model, I need not go there. I need not buy this pen. Yeah, I need to do this. I need to buy this. I need to play. I need to sleep. मतलब वहां पर नीड जो है वो वर्ब के साथ लगेगा और पूरे सेंटेंस के वर्ब के मूड को चेंज करेगा. जैसे कि मुझे बोलना है कि मैं खेलता हूं, आई प्ले, और मैं बोलता हूं कि नहीं मेरे लिए खेलना जरूरी है, आई नीड टू प्ले. तो उस एक्शन को बताने के लोगों को कि ये एक्शन मेरे लिए जरूरी है, हम उस वर्ब के साथ में नीड लगाते हैं. या अगर वो एक्शन जरूरी नहीं है तो नीड नॉट लगाते हैं. और अगर आप सीधा नीड लगाएंगे, ओनली नीड, तो क्या हो जाएगा? वो एज ए वर्ब काम करेगा. आई एम नीडिंग दिस पेन, आई एम नीडिंग दिस साइकिल. मुझे साइकिल की आवश्यकता है, मुझे इस पेन की आवश्यकता है. ओके, रिवाइज नहीं करेंगे अभिनव तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है. नेक्स्ट राधा मैम, टेक वन, एक्सप्लेन. Sir, I am taking ought to. ought to, yes, ठीक है. Ought to. The ought to is the models we use for the mandatory, the things that is mandatory. Okay. And a strong wish to do the things. Okay, give me Mandatory an example. plus strong. An example is, I ought to have a better marks in exam. I ought to have better marks. ought to का यूज यहाँ नहीं करेंगे मैम. To get, I ought to get a better marks. No, ये आपका ऑब्लिगेशन नहीं है. ये ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज करते हैं. I ought to take care of my children. Yes. है ना, मैंने बताया था वहां पे कि ये थोड़ा सा आपके लिए कंपल्सन है, मतलब ये काम आपके ही जिम्मे है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे कि टीचर को हम बोल सकते हैं यू ऑट टू टीच वेल. यानी टीचर का काम क्या है? उससे अच्छे से पढ़ाना है बच्चों को. यू ऑट टू डू दिस. फादर को बोल सकते हैं यू ऑट टू टेक केयर ऑफ फैमिली. यू ऑट टू अर्न मनी फॉर योर किड्स. मतलब ये उसका क्या है? ऑब्लिगेशन. ये उसकी ड्यूटी Obligation का.
कर्तव्य है। कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है उस काम को करना। यू ऑट टू डू दिस। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ फैमिली, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर फैमिली। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम किसी व्यक्ति को पुश कर रहे हैं कि तुम्हें अपने परिवार का ख्याल रखना है, वहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट इफ आई एम सेइंग यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। लीगली यू आर रिस्पॉन्सिबल। अब अगर फैमिली को अगर कौन टेक केयर करेगा? लीगली लॉ बोलता है कि फादर एंड मदर विल टेक केयर ऑफ फैमिली, वहां पे हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहां पर ऑब्लिगेशन। Can I say? हाँ, yes, Yes. tell me. Okay, can I say one more? Hmm. Okay, I'm taking can. Okay. Can is used for the ability to do. Okay. Just I can write, I can sing, Fantastic. बिल्कुल सही। and okay sir, okay. है ना, अपनी ताकत को, अपने एबिलिटी को, क्षमता को दिखलाने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। हर्ष, योर टर्न। Yes, sir. Sir, I will choose will. Will, okay. Will is used in the future tense, like I will play, I will eat. तो ये तो आपका I नॉर्मल हो will do गया, my homework. इसमें तो कुछ भी नहीं है। Yes, sir. सी, मॉडल का मतलब हमेशा याद रखिए कि मॉडल के लगने से सेंटेंस सिंपल नहीं रह जाएगा, सेंटेंस के भाव में अंतर आएगा। आई विल गो, आई विल, इसमें क्या अंतर आया इसमें? विल और शैल भी मॉडल्स का पार्ट हैं, लेकिन आप सेंटेंस सही बना रहे हैं, बट आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। Who will explain will, shall? Will and shall. They are also part of modal. Will is used for किसी ने ग्रामर की किताब खोल करके मॉडल्स को एक बार ध्यान से देखने का प्रयास ही नहीं किया, एकदम क्लियर है। देखी हूँ सर। तो आपके आंख से गया होगा ना? तो बताइए, विल का बताइए। Will is used for the promise. हाँ, विल का मतलब हो गया कंफर्मेशन। नॉर्मल केस में हम बोलते हैं आई शैल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा। ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कहीं कोई कंपल्सन, कोई इसमें गारंटी नहीं है। बट द मोमेंट यू यूज विल, आई विल गो टू पटना, मतलब मेरा कंफर्म है मैं पटना जाऊंगा ही जाऊंगा। पूरे सेंटेंस का मूड चेंज कर दिया मैंने, आई विल गो टू पटना। ठीक है, तो जब आप विल का इस्तेमाल करते हैं आई के साथ में और वी के साथ में, तो ये काम करता है मॉडल का, ये कंफर्म करता है कि ये एक्शन होके रहेगा। वैसे ही अगर आप बाकी के साथ, यू के साथ, ही के साथ शैल का यूज करते हैं, तो क्या होता है? वो भी कंफर्म होता है। ही शैल डू दिस, उसे ये काम करना ही होगा, ही शैल डू दिस। और ही विल डू दिस मतलब वो करेगा नहीं करेगा मुझे मालूम नहीं। अब क्लियर हुआ हर्ष? क्लियर हुआ? सर, it is used for wish also. Yes, sir. जैसे बताइए, एग्जांपल दीजिए विश के लिए। I will go home. I will go home. Yes. Sir, for wish we should use shall. I shall go home. If I am somewhere else Hmm. and
I don't want to stay there anymore. I Hmm. already passed 2 days. Hmm. Then I say to their householder, Hmm. "Eh, let me go now. I will go now. I will go now. I will हाँ, go now. मतलब मैं मैं जाऊंगा। जाऊंगा। तो ये विश ज्यादा ये हुआ कि मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई अब तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। आई विल गो। कंफर्मेशन बता रहा हूँ मैं इसमें। हाँ, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन बता रहा हूँ कि मैं अब चला जाऊंगा, अब तुम्हारे बोलने से रुकना नहीं है। आई विल गो। ठीक है। सो आई विल रिक्वेस्ट अभिनव, हर्ष, मैम, ऑल थ्री ऑफ यू, प्लीज एक बार वापस मेरे लिए इंपरेटिव मूड और मॉडल्स को आप वापस एक बार देख जाइए। सी होता क्या है ना कि नाउ एवरी क्लास वी विल लर्न समथिंग न्यू। जो अभी आप छोड़ देंगे वो आपका छूट जाएगा, फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। वी हैव सो मेनी चैप्टर्स, राइट? सो एक बार वापस आप देख जाइए, सो दैट जितना आपके दिमाग में रह जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी विथ यू इन योर लाइफ। ओके, नाउ वी विल सर, डू, हाँ टेल मी। सर, जब मैं पढ़ती हूँ ना तो इतना सारा इस जैसे मॉडल्स जो है वो इतना सारा है कि मैं 4-5 से आगे बढ़ते बढ़ते मैं भूलने लगती हूँ। अरे बाबा, तो ये तो जिंदगी का पार्ट है ना। या फिर ये कहिए कि मिक्स होने लगता है। भूलती नहीं हूँ मैं, मेरा मिक्स होने लगता है। So this is a very common problem. Once we study too much, तो वो भूलते हैं। मैं बोलता हूं कि आप एक काम कीजिए, आउट ऑफ 30 अगर आपको लगता है कि एक साथ पढ़ना मुश्किल है, गो फॉर 2 मॉडल्स। 2 पढ़िए, उसका इस्तेमाल कीजिए पहले। मैंने आज पढ़ा कैन और Yes. मे। अब मैं आज दिन भर जो है कैन और मे के ऊपर में 15, 20, 25, 30 सेंटेंस बना बना करके आई विल टॉक टू माई फैमिली मेंबर्स, माई फ्रेंड्स। जब मैं वो खत्म हो गया, देन आई विल गो फॉर नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट 3, जो भी है मेरे पास, जो मेरा स्टेमिना है। आप मुझे बोल सकते हैं कि सर प्लीज डोंट पुश मी, 13 मॉडल्स है, आई विल टेक 1 वीक टू फिनिश। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट गिव मी अ टाइम लाइन टू टेल मी समथिंग। आपका एक दिन में 13 पढ़ना मुश्किल है, बट अगर आप पूरे हफ्ते में 2-2 पढ़ेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है? हो पाएगा? पूरे हफ्ते में 2-2? मतलब 7 दिन का हफ्ता होता है, अगर आपने 2-2 पढ़ लिया हर दिन, 2 पढ़ा, उसको प्रैक्टिस किया, 2 पढ़ा, प्रैक्टिस किया, तो क्या क्या होगा फिर? इजी है, टफ है? हाँ, हाँ, तो नहीं इजी है। ये तो आपको सोचना है ना भाई। आपको पढ़ना है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कल भी आपसे ही कहा था, हम एक ही रोटी खाएंगे, उसको पचाएंगे। 10 रोटी खा करके बदहजमी नहीं करेंगे। आपको बोलना होगा कि भाई यस। सर 13 मॉडल्स है, मुझसे एक दिन में नहीं होगा, आई विल टेक 1 वीक। मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, मुझे क्या दिक्कत है? मुझे आपके पढ़ने से मतलब है, आप एक दिन में कीजिए, 7 दिन में कीजिए, बट जो कीजिए पक्का कीजिए, राइट? यस, यस सर। सो अभिनव एंड हर्ष, आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गो थ्रू मॉडल्स। मॉडल्स आपको 9th-10th में भी आपको आता ही आता है, आएगा आपको 9th-10th में। फाइन। अब हमारा आज बिकॉज ऑफ मॉडल्स एक्सप्लेनेशन काफी कुछ छूट गया। डिक्टेशन छूट गया हमारा एक, एक्टिविटी नंबर 2 एंड होमवर्क नंबर 3। नॉट अ प्रॉब्लम, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल हैंडल दिस। या फिर हम क्या करेंगे, अभी अगर आप लोग के पास टाइम है तो वी कैन लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन। टाइम है सबके पास में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so please log out and log in because हमारा 40 minutes is going to be over and then we'll do dictation and rest things. चलिए, log in again. Okay, be ready with your pen and paper. We will go for dictation. Waiting for Radha ma'am to come in and then we'll start.
Where is she? She is not joining. हाँ, she has come, I think. No, अभिनव ही है. उफ. क्या हो गया? Let me check. Let me call her. Sir, your mic is muted. I was talking to Radha ma'am. She was waiting for a new link. Oh, 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 oh. So we have to learn a lot. Now she has come. Yes, sir. Okay, the first word is glossary. Glossary. Glossary का मतलब होता है शब्द, मतलब किसी भी किताब में या किसी भी जगह पे जितने भी उसके अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनके पूरे लिस्ट को हम बोलते हैं ग्लॉसरी. शब्द समूह, शब्द संग्रह, ग्लॉसरी. Yes, sir. Second one is extraterrestrial. 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 Extraterrestrial यानी कि दूसरे ग्रह का प्राणी, ऐसा प्राणी जो कि पृथ्वी का नहीं है. Extraterrestrial. Yes, sir. Glossary, extraterrestrial. Number 3 is lullaby. Lullaby का मतलब होता है लोरी. Lullaby. Lullaby is लोरी. My God, हर घर में तो लगता है कि 3-4 लोग हैं, वो लगातार बात करते हैं, लगातार. Sir, please say from the start. Glossary number 1, extraterrestrial number 2, and lullaby number 3. Glossary, extraterrestrial. एक पिक्चर भी आई थी हॉलीवुड में जिसका नाम था ईटी. पिक्चर का नाम था ईटी, बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का शॉर्ट फॉर्म हो गया ईटी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. वेरी फेमस मूवी ईटी. एंड थर्ड वन इज ललाबाई. ललाबाई का मतलब होता है लोरी. ललाबाई. Sir, that was Hollywood movie. हॉलीवुड मूवी ईटी. So glossary,
extraterrestrial, and lullaby. Fourth one is shepherd. I think maybe repeated. Shepherd. Yes, sir. Shepherd. Okay, shepherd. इसको हम प नहीं बोलते हैं, प. Shepherd. Shepherd. कुछ कुछ वर्ड्स क्या होता है ना, आई ऑल्सो फॉरगेट कि क्या क्या यूज हुआ है, क्या यूज नहीं हुआ है. नेक्टर. आई थिंक ये भी शायद रिपीटेड है. नेक्टर. नेक्टर इज फूल के पराग का रस. किसी भी फूल के पराग, पॉलन बोलते हैं इंग्लिश में, पॉलन, उसका जो रस It होता is है, not. that is called It nectar. is not repeated, sir. Not repeated. Okay. Actually, I'm also running English for juniors. So बहुत सारे words वहाँ use करता हूँ. So I also keep on getting confused. Okay. Nectar. Nectar के बाद है hinge. Hinge is कब्जा. I think ये हो चुका है use. Hinge. No, sir. ये भी नहीं हुआ है. Very good. तो वहाँ किया होगा मैंने इस्तेमाल. Hinge. Hinge का मतलब कब्जा. चौखट और दरवाजे को जोड़ने वाला कब्जा. Hinge. In biology also you have to study hinge joint. There are many joints in body which is known as hinge joint. Next is lethal. Lethal. Lethal का मतलब होता है प्राण घातक. Lethal. This is a lethal weapon. यानी ये जो वेपन है, ये जो हथियार है, वो प्राण घातक है. इसके इस्तेमाल से जान जा सकती है. दिस इज अ लीथल डोज. यानी जो खुराक है, दवा की खुराक है, वो प्राण घातक है. जानलेवा. इस जानलेवा बोल सकते हैं, जानलेवा. यस, प्राण घातक, जानलेवा. लीथल डोज, लीथल वेपन, लीथल एक्शन. So we call it lethal. Now I'm repeating: glossary, extraterrestrial, lullaby, shepherd, nectar, hinge, lethal, and next is masticate. Masticate का मतलब आगे वाली दांतों से पीसना, खाने को पीसना. Whenever we eat any nuts or any solid item, हम आगे वाले दांत से उसको पीसते हैं. That is called masticate. To break the food items, solid food items into fine powder. Masticate. Ninth one is plantain. Plantain. Plantain is one name of banana. Banana की एक स्पेशल किस्म होती है, वैरायटी होती है, which is known as plantain. 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 And the last one is exile. Exile का मतलब वनवास. This is repeated. This is repeated. So God Rama went on exile. So glossary, extraterrestrial, lullaby, shepherd, nectar, hinge, lethal, masticate, plantain, and exile. So if all done, I am sharing the window. So you can check and tell me your score. Seven, sir. 7. And always keep in mind what all. Sir, 8. 8 is My two, harsh. sir. 7. 7. My two, 7. All words which I am sharing with you, they are common words. कोई tough शब्द हम आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. All are common. All are popular words, right? Now next one is life is beautiful. I will send a video of this. This one we have done. Just check.
This activity we have done? No? No, sir. Okay, you know all the meanings. इसमें कोई ऐसा शब्द है जो कि जिसका मतलब आपको नहीं मालूम है? Any word? Just check. So, did means Which one? did. Deed. किसको मालूम भाई? Deed का मतलब? किसी को नहीं मालूम है. Deed का मतलब जनरली हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब हम लीगली दो लोग, दो पार्टी आपस में कोई डॉक्यूमेंट या कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई डॉक्यूमेंट, सपोज कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कॉन्ट्रैक्ट इज द राइट वर्ड. कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जमीन का ट्रांसफर है, किसी कंपनी का ट्रांसफर है, तो हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ लीगल डीड फॉर दिस. डीड, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं डीड का. मैं तो वही जानता हूं इस्तेमाल, इसके अलावा इसका इस्तेमाल और कहीं मैं देखा नहीं है. जनरली सर इसका सिंगल हिंदी अर्थ बताइए. डी मतलब करार बोल सकती हैं. करार बोलते हैं ना, करार, आपस में कोई करार, और भी वर्ड्स है. समझौता. सर और भी वर्ड्स इसका मीनिंग मुझे नहीं आता है. आप बताइए और कौन सा वर्ड है? लेजिबल. लेजिबल मतलब ऐसी लिखावट जो हम पढ़ सकें, पढ़ने लायक लिखावट. और एक है सर उसका मोर्टल. मोर्टल का मतलब होता है जो मरने वाला है, मतलब जो मरेगा, मतलब जिसकी मृत्यु निश्चित है. मोर्टल. मैन इज मोर्टल. अच्छा, मैं समझती थी मोर्टल मींस अमर. नहीं, मोर्टल का मतलब जो मरेगा, मतलब जिसकी मृत्यु निश्चित है, मोर्टल. ओके, और बताइए और कौन सा वर्ड? हो गया सर, बाकी आई नो. दैट्स इट. अभिनव, ऑल क्लियर? Yes, sir. हर्ष, ऑल क्लियर? हर्ष, ऑल क्लियर? सर रिवर्सिबल का मतलब है ना बार बार रिपीट होना. रिवर्सिबल का मतलब है जिसको रिवर्स किया जा सके. रिवर्स मतलब उलटना. उलट, हाँ, जिसको उल्टा जा सके. हम बोलते हैं ना कि भाई ये एक्शन रिवर्सिबल है, यानी इस एक्शन को मैं वापस उलट सकता हूं. ओके ओके सर. हर्ष जवाब नहीं दे रहा है. हर्ष, सब क्लियर है? ऑल वर्ड्स छोड़ दीजिए, कहीं गायब हो गया कहीं पर वो. ओके, अब आपका जो काम है, जो एक्टिविटी है, वो ये है कि नाउ यू हैव टू ऐड अ प्रीफिक्स. इन सारे शब्दों के आगे आपको एक प्रीफिक्स लगाना है. एंड यू हैव टू क्रिएट एन एंटोनिम. इसका विपरीतार्थक शब्द आपको बनाना है. यस सर. जैसे I will give you one example. The first word is dependent, मतलब निर्भर. I am dependent on my mother. इसका उल्टा क्या हो जाएगा? Independent. यानी मैं अपने ऊपर पैरों पे खड़ा हूं. I am independent. स्वतंत्र हूं, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं. डिपेंडेंट का उल्टा इंडिपेंडेंट. वैसे ही आपको इन सारे शब्दों का उल्टा बनाना है बाय एडिंग अ प्रीफिक्स. क्लियर हुआ अब? यस सर. प्लीज स्टार्ट. लेट मी सी हाउ मेनी यू कैन डू. Sir, your voice is breaking. Please repeat what we have to do. माय गॉड, इसका मतलब मेरी वॉइस ठीक से नहीं आती है. ओके, डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर निर्भर. सर मतलब तो पता है, करना क्या है? अरे बाबा, तो मैंने क्या बताया आपको? डिपेंडेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट. तो मैंने आई एन जोड़ दिया, इट बिकेम इंडिपेंडेंट.
वैसे ही बाकी सारे शब्दों का उल्टा शब्द बनाना है प्रीफिक्स जोड़ करके। Okay, sir. I have done, sir. वेरी गुड, बाकी लोग समझने में लगे हुए हैं, आपने कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्पोकन इंग्लिश सीनियर, आई वांट स्पीड। मेरे स्लाइड चेंज करते ही समझ में आ जाए कि सर इसमें क्या खोज रहे हैं, व्हाट ही इज आस्किंग फॉर, व्हाट ही इज लुकिंग फॉर, तो मजा आए पढ़ाने में। हर्ष, आप वापस आए कि गायब है अभी तक? एक तो मैं जा रहा हूं, Yes, sir. Yes, I'm sir. going to put a rule now. Maybe I will try to post it in the group today only, that from next class I want all cameras on. कैमरा ऑफ है, कोई सो रहा है, कोई चला गया उठ करके, कोई बातें कर रहा है, आई डोंट नो। सो फ्रॉम, अभी तक मैंने बोला नहीं था, जब तक मैं कंफर्म नहीं करूंगा तो आई डोंट हैव अ राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू अनाउंस इन ऑल माय ग्रुप्स, ऑल माय बैचेस, that keeping the camera on is mandatory. अगर आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे, I will remove you. Simple. Abhinav, done? Okay, let me start. छोड़ दीजिए. Yes, sir. Okay, now you can check and tell me the score. कितना सही, कितना गलत? Sir, independent, indefinite, injustice, impossible, improper, immoral, irreversible, illegal. Sir, my only one is wrong. Which one? I did. Misdeed. अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने का चीज है। डीड का मतलब तो मैंने बताया आपको, करार, समझौता, लीगल टर्म है। मिसडीड, मिसडीड का मतलब होता है गलत व्यवहार। he was punished for his misdeed. उसके गलत हरकत के कारण उसको पनिश किया गया। he was punished for his misdeed. Misdeed, yes. Okay, but deed का इस्तेमाल हम ऐसा नहीं करते हैं कि he was क्या बोलते हैं, awarded for his deed, नहीं। deed का इस्तेमाल कॉमनली नहीं होता है, बट मिसडीड का मतलब होता है इट्स अ रॉन्ग बिहेवियर, रॉन्ग एक्शन। अभिनव, Sir, क्लियर है? yes, sir. You have used in previous class. Which one? Misdeed? No, sir. No, sir. This This total. activity. Yes, sir, this Activity, sir. फिर कैसे Yes, आप sir. लोग, फिर कैसे भूल गए आप लोग? when I have shown the previous screen, everyone was confused. पता नहीं क्या होने वाला है। Okay, anyway, अच्छा हो गया, एक बार वापस आपका रिवाइज हो गया। इसका मतलब कि आपने पहले वाले पीडीएफ को रिवाइज नहीं किया था, इसीलिए यू आर नॉट नोइंग द मीनिंग ऑफ लेजिबल, मीनिंग ऑफ मोर्टल। अदरवाइज अगर आपने पीडीएफ देखा होता, आपने डिक्शनरी से चेक कर लिया होता। यू मस्ट हैव चेक्ड। Okay. Sir, word is not same. Activity is same, sir. Activity changed. Activity is same. Word is not same, sir. अच्छा, it's a different word. Word is different. Activity is same. Not possible. I think it is same. Same. You can go on the last Yes, PDF. sir. Yes, of the sir. class. Yes, sir. Yes, sir. It was This same. is same. Yes, sir. It was Same. same. You have not done the revision of previous PDF. Simple. Okay. Okay. So now done. Everything is done. Now two things are new. Thank you card and good night card. Have I explained this? Thank you card and good night card? No, sir. No? Okay, fine. So please remind me in the next class, I will explain thank you card and good night card, and then you Sir, will come. please explain good night card. Good night card. Explain now. Yes, sir. Good night card. Not thank you. Card. Okay, ठीक है।
So quickly, I will tell you how to make good night card. We all have many qualities, like we are punctual, we are honest, we are hardworking, we are obedient. Fine. So what you will do, you will write all your good qualities. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then after writing that, go to your family members, mom, dad, son, daughter, father, mother, husband, wife, whatever, whoever is family member are there, and check with them, out of your number of qualities, number of good qualities, how many they are confirming. कितने पे वो भी confirm करते हैं कि yes, तुम्हारे अंदर ये quality है. Suppose you have written 10 qualities, but after discussing with your family members, you got कि नहीं, 10 में से 5 मेरा confirm है, 5 कभी है, कभी नहीं है. Now, which all are confirmed, number 5, 5, 6, 7, whatever, you will write on a piece of paper. तो क्या करेंगे, हम एक पेपर ले लेंगे ऐसा, उस पेपर को ऐसा फोल्ड कर देंगे. फोल्ड करने से क्या होगा, इट विल बिकम लाइक अ कार्ड. कार्ड कैसे होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड पीछे वाला फोर्थ, राइट. ये फ्रंट है, चूंकि ये कैमरा में रिवर्स आता है. सो 1, 2, 3 एंड 4, ये बन गया कार्ड, बन गया कार्ड. इस कार्ड के Yes, आगे sir. में हम लिखेंगे गुड नाइट कार्ड. फाइन. On whatever decoration you want to do, you can do the decoration. Now on the inside one, इस अंदर का जो आपका पेज है, यहां पे आप अपने सारे क्वालिटीज को लिखेंगे. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5. तो ये पेज खाली है, यहां भी आप कुछ कर सकते हैं. एंड फाइनली ऑन द रिवर्स वन, जो सबसे लास्ट का जो पीछे वाला जो है, वहां लिखेंगे आई promise myself that I will display these qualities every day. मैं अपने आप से वादा करती हूं कि मैं इन क्वालिटीज को हर दिन इस्तेमाल में लाऊंगी. सो गुड नाइट कार्ड, यहां पे कुछ जो भी आपको करना है कर सकते हैं. यहां पर लिस्ट ऑफ क्वालिटीज और यहां पर आपका प्रॉमिस. अब आपका एक कार्ड रेडी हो गया. This card is going to be kept under the pillow or under the bed. And before sleeping in the night, रात में सोने से पहले आप इस कार्ड को बाहर निकालेंगे and you will check कि जो भी मेरे क्वालिटीज हैं, क्या मैं उनका इस्तेमाल अपने लाइफ में मैंने आज किया या नहीं किया. अगर आपने किया, if you have followed all your qualities, you are going to feel good. आपको अच्छा लगेगा. बट अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको खराब लगेगा. सिंपल. जैसे कि आपने लिखा था आई एम हार्ड वर्किंग, लेकिन आज आपने कहीं ना कहीं टाइम को वेस्ट कर दिया, टाइम पास कर लिया. आपको दुख होगा कि लिखा था हार्ड वर्किंग, बट हार्ड वर्किंग हुआ नहीं. सो बिफोर यू स्लीप you have to check, and then if you have displayed, if you have followed your quality, you will do like this. Sabashi, very good, well done. And if you have not displayed, अगर आपने अपनी उस क्वालिटी को फॉलो नहीं किया या ब्रेक किया, ट्विस्ट योर ईयर. कान को घुमाना है, अपने कान को कस के नहीं घुमाना है, हल्के से घुमाना है. अपने को बता रहे हैं कि भाई ये गलती हुआ, ये सही नहीं हुआ. कल से इस सारे क्वालिटीज को फॉलो करना है. दिस इज योर गुड नाइट कार्ड, which is going to keep you on track, which is going to help you in following all your good qualities every day. Fine. And you can also pass on this card. After making this, you can also request your other family members to make this card and follow it. Okay. If you need any example चाहिए अगर आपको, please drop me a message. I will send you a sample. Clear? Sir,
सर मुझे वो कार्ड को एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या क्या करना है। मैं आपको मेरा ध्यान भटक रहा है शायद बच्चों की तरफ। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कार्ड लेना है, कार्ड बनाना है पेपर शीट से, उसके फर्स्ट पेज को डेकोरेट करना है, और सेकंड पेज पे मैं मिस करी, थर्ड पेज पे अपनी क्वालिटीज लिखनी है, और फोर्थ पेज पे I promise myself I promise myself that I will follow these qualities every day. ओके, उसको रात को सोने से पहले देख तकिए लेना के है। नीचे रखना है, सोने से पहले उसको देख लेना है। करेक्ट। अगर आपने फॉलो कर सेकंड लिया, पेज पे क्या करना, सेकंड शाबाशी पेज देना है, और नहीं किया तो कान खींचना है। सेकंड पेज ब्लैंक है, उस पे आप कोई डेकोरेशन या पेंटिंग वेंटिंग कर सकते हैं। ओके सर। और आपका जो ये डिस्ट्रैक्शन है, इसके लिए आई विल रिक्वेस्ट कि जब आप इस क्लास में बैठती हैं, आप अकेले बैठिए रूम में और अपने गेट को बंद कर लीजिए। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग बैठते हैं पढ़ने के लिए, गेट खुला हुआ है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, बातें कर रहा है, इशारा कर रहा है, तो आपका ध्यान कहां से लगने वाला है। जब मैं बैठता हूं आपको पढ़ाने के लिए या किसी को पढ़ाने के लिए, वो 40 मिनट्स मैं और कुछ सोचता नहीं हूं। ओनली माई फोकस इज ऑन द क्लास, दैट्स इट। अगर ये फोकस नहीं है तो पढ़ना बहुत मुश्किल है। ओके, चलिए, सो आई थिंक दैट्स इट। लास्ट क्लास का होमवर्क क्या था? वही था, मॉडल्स था। फाइन फाइन, ओके ओके ओके, राइट राइट। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट ऑन Friday at 7 p.m. Bye bye, take care and good Bye, night. sir. ओके, बाय सर। Bye.